जी जी। So ma'am, 23rd April 2008, हाँ। 2105, Mumbai, Maharashtra. यस। Okay. So ma'am, I'll tell you something about his chart, then we'll move forward. हाँ। Ma'am, he has Moon in first house, eighth sign, Jupiter in हम्म, second house, Rahu in fourth house, Venus in fifth house, exalted, बहुत ही बढ़िया. Sun and Mercury in sixth house, again exalted Sun. Mars in eighth house, and Saturn and Ketu in tenth house. ओके। मैम मेरे को दो तीन बातें बताइए प्लीज. जी। बेटे को गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता है? नहीं। ठीक है, कंट्रोल्ड है. नहीं। हाँ, मतलब उसको गुस्सा आता है, एकदम स्ट्रेच करोगे एकदम लास्ट में जाके फटेगा, बट नहीं। गुस्सा नहीं, शांत है। यू सेइंग गुस्सा नहीं आता? कम मार, बहुत ही कम। बहुत बहुत बढ़िया. या अच्छा हाँ। मैम, आर्यमन थोड़ा सा क्रिएटिव साइड रखता है अपनी लाइफ में, मतलब नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं क्रिएटिव है, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं। क्रिएटिव नहीं है? नो पोएम्स, नो जीरो राइम्स, जीरो। नो? जीरो. जीरो। ओके. तो मैम अभी द मेन क्वेश्चन यू आर हैविंग इज समथिंग अबाउट हिज एजुकेशन, राइट? करेक्ट। ओके. मैं वो बेसिकली तो एजुकेशन, विकास करियर। जी, जी. विकास जी आपको एक बता देते हैं. ही इज इन नाउ 11th के एग्जाम्स देगा वो. हम्म. वो सी लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अलॉन्ग विद इट, सो द लॉ एंट्रेंस टेस्ट. हम्म. सो ही वांट्स टू डू लॉ इज व्हाट दे डिसाइडेड. हम्म. सो बीए, सो स्कूल में बीए लिया हुआ है. Along with that, he'll be studying law, and it's when as and when he kind of gets, apart from ये NLU's नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम होती है जैसे जेई होता है इंजीनियरिंग के लिए. हम्म. इसके साथ ही विल ऑल्सो हैव टू टेक दी प्राइवेट लॉ स्कूल्स की एंट्रेंस टेस्ट. तो जो भी उसमें विच एवर आर द, so basically he's studying for that, but at the moment he's underperforming a bit in his tests. And थोड़ा सा वो seriousness जो अभी होना चाहिए, that has been lacking is what the feedback from his teachers also have been. And hence, to understand whether he's in the right stream, whether law will be a right stream for him, या अगर आप के रीडिंग के अनुसार और कुछ होना चाहिए तो दैट इज, you can suggest that as well if there are any alternative career choices. And just general, basically reading about him as a person and his where he is, because he's at a very very crucial juncture अभी ये एज में. तो यहाँ से वो पूरे उसके लाइफ की डायरेक्शन आएगी. सो उस हिसाब से वी वांटेड टू गेट a sense from you how can we encourage him, and how what can be done from our end to ensure that he is well motivated. That in summary is what we are trying to look at from our side. आपके हिसाब से if there are any further inputs, please feel free to share them. डेफिनेटली. आपने लॉ का क्यों सोचा? उसने सोचा, उसने डिसाइड करा कि मैं, उसने बोला हमको कि वो लॉ करना चाहता है। उनके स्कूल में करियर काउंसलिंग हुआ था विकास जी, एंड उसमें अमंग द वेरियस options that they had given, law was one of the option which the स्कूल ने कराया था उनके. तो यस। वो करियर काउंसलिंग में, so he veered towards that. और also one of Aarti's cousin brother, he is a lawyer, so there is one, so he has seen it in the family, so probably that's why he veered towards it. हम्म. Okay. So see, now we have chosen law already, यस। right? So I don't think there is any kind of backtracking from this point of time, from this point, right? मतलब हाँ, it'll be difficult, let me It put will it like be that. Yeah. it will be difficult, but it will be very bad decision. Oh, okay. I would Okay. I would definitely suggest one thing. Like along with law, he is very young, है ना? 16 years of age है. Yes. बी बीए करेगा, फिर एलएलबी करेगा, फिर एलएलएम के बाद में सोचेंगे.
हम्म, So by the time he is 22 और I think 20 लॉ 3 साल की होती है, बीए भी 3 साल की होती है, I हाँ, guess. 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा सर, आई थिंक। 5 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, हाँ। So BA LLB. जी। So मतलब इसमें now he is 16 years, 16 is complete, 17 years is 17 plus. 17 है नेक्स्ट मंथ, हाँ। तो अगर मान के चलते हैं कि 2000 after 5 years he'll be graduating by BA LLB. हम्म, So that is 2029. हम्म, So 2029 में he would be 21 years of age. हम्म, बहुत बढ़िया। सो अभी हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके चलते हैं कि 21 ईयर्स की एज में ही विल बी स्टार्टिंग केतु। सो केतु इज इन 10th हाउस, इट इज वेरी गुड इन हियर along with Saturn, ओके। बट मैम एक चीज है, आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आर्यमन विल हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस ऑल द टाइम, दैट इज मल्टीपल करियर चॉइसेस। आई विल हम्म, एक्सप्लेन। This Ketu is in the 10th house. 10th house is the house of profession. ओके, So यहाँ पे Araman will be having two things in his mind at a time. That is, एक पॉइंट के बाद आके he will think that I should do something else. ऐसा होता है इसकी लाइफ में थोड़ा सा। अभी तो वैसे बहुत यंग है, यस, यस, आई मीन इज थोड़ा इनडिसाइसिव सा होता है indecisive है, कभी। not at a हाँ, particular track कि हाँ मेरे को ये करना है, ये नहीं। हाँ, यस, यस, बट हैविंग सेड दैट ही इज ओनली 16, हम्म, और ऐसा कोई मौका आया नहीं है कि आया दैट नहीं। ही हैज टू, यू नो, अभी तक तो सिर्फ उसने हार्डली कुछ देखा है या कुछ करा है, हाँ, तो हाँ। बिकॉज इज वेरी अंडर वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अभी। यस, बट ये नॉर्मली यस, ऐसा होता है कि केतु जब भी 10th हाउस में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल चीजें देने की क्षमता रखती हैं कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है और साइड बाय साइड करना है। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये अच्छी चीज है, बिकॉज ड्यूरिंग हिज करियर एजेस व्हेन ही स्टार्ट्स 21 ईयर्स ऑफ एज, सो 21 से लेके 27 साल तक, 21 से लेके 27 साल तक he will be running Ketu period. So Ketu period will be somewhat good for his career. Getting my point now? ओके, I'll explain once again. या, मैम 2034 में ये कितने साल का होगा? 26-27 साल का होगा। हाँ, तो 21 साल से लेके 26-27 साल तक इसका करियर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन और हो जाएगा। ओके, बट उस पॉइंट पे ही विल बी अ बिट, यू नो, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को, तो थोड़ा सा वो उसमें वो रहेगा, बट करियर चलता रहेगा इसका। He may ओके, feel dissatisfied, he may feel I'm not on the right track, बट कहीं ना कहीं उसका करियर चलता रहेगा। सो ओके, अगर मैं इसमें थोड़ा पीछे आऊं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी ये 2000 अभी ही इज रनिंग मरकरी की महादशा। मरकरी की महादशा में सैटर्न का अंतर चल रहा है। मरकरी इज ओके इन इस चार्ट, नॉट वेरी बैड आई वुड से। तो मैं मेरे को एक बात और बताइए, हम्म, जब ये 8-9 साल का था, लाइक सितंबर 2016 से 17, so how was his health? Anything related to stomach happened or anything related to कुछ कुछ हुआ था इसको जब 8-9 साल का था ये? 8-9 साल, मतलब 10 years 8-9 साल पहले। नो, 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 8-9 साल, हाँ, नहीं, 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 कुछ भी नहीं, कुछ ही। ही 2 बार उसको एज अ चाइल्ड उसको ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सिवियर डिहाइड्रेशन, ये 2 बार हुआ है, कब हुआ है? बट नॉट 8-9 साल में। 8-9 साल ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कब हुआ था इसको डिहाइड्रेशन? आई थिंक वो छोटा सा ही था, आई थिंक 4-5 years, 6 years। मतलब 2012 से 14, मोटा मोटा हाँ, 2012 से 14। नहीं, उससे भी कम एक्चुअली, ही वाज मच यंगर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, मतलब हेल्थ वाइज तो हाँ, There was one there was a small surgery of a trigger finger when he was 2 or 3 years नहीं, और old. अभी 2 साल पहले when he was अभी hospitalized 2 साल पहले he had got dengue, 2 साल पहले severe dengue। हाँ, 2 साल पहले उसको डेंगू हो गया था, he was hospitalized। 2 साल भी नहीं, 1 year हो। मरकरी में जुपिटर,
मतलब उसको हॉस्पिटलाइज 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में था। 10 दिन के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ा। मैम मेरे को डेट बताओगे, थोड़ा सा महीना बता सकते हो कौन सा था? हाँ, महीना it was around सितंबर 23, राइट? September, मतलब यस, एंड जून जुलाई अगस्त, एंड ऑफ अगस्त से सितंबर तक ही वाज देयर। या, करेक्ट। 2023। या। मरकरी, जुपिटर, वीनस। And at that time, how was he performing at the school? School has always been average. In fact, उस टाइम तो उसके एग्जाम्स थे which he missed. उसके प्रीलिम्स चल रहे थे, उसको मिस करना पड़ा था क्योंकि he was in the हॉस्पिटल। बहुत ही एवरेज है, स्कूल में बहुत ही एवरेज था। किस सम सब्जेक्ट्स बिलो एवरेज। Okay. मैम आर यू श्योर द टाइम यही है, 21:05 है? हेलो हाँ जी, कहाँ पे? मैम, मैं पूछ रहा हूँ टाइम 21:05 ही है? यस। मैम मेरे को दो तीन चीज और बताइए प्लीज। हम्म। मैम आप फर्स्ट फ्लोर पे रहती हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती हो, कहाँ पे रहती हो? 4th फ्लोर। फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। मैम आपके घर के आसपास कोई वेकेंट लैंड या वेकेंट फ्लैट वगैरह है? नहीं, मेरे घर के ऑपोजिट सी है। घर के ऑपोजिट सी है? हाँ। मैम एक बार अपना चार्ट देंगे जरा मेरे को? क्या देंगे? अपना अपनी डिटेल्स देंगे जरा एक बार? योर डिटेल्स, योर डिटेल्स। हाँ, माई डिटेल्स आर 9th 9 सितंबर September 77। 77. ये फुल नेम मैम? आरती चावला, राइट? हाँ, 9 सितंबर। 77. 1977। टाइम प्लीज। रुके बताता हूँ, टाइम चेक करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, रुके। मैम क्योंकि दो तीन चीजें ना आपने बोला कि गुस्सा नहीं आता, तो वो थोड़ा सा मेरे को वो टिपिकल लग रहा है। नहीं, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम शांत ही रहता है, बात ही नहीं करता है। और और क्रिएटिव भी जब नहीं है, आपने बोला क्रिएटिव भी नहीं है। तो नहीं थ्री नहीं, जीरो करे। 3:08 PM कोलकाता। तो सर विकास जी, आप जो कह रहे हो ना, हम्म। तो whenever there is some kind of an argument or disagreement with his parents, he does tend to flare up. बट दैट्स द ओनली टाइम। नो आई नेचुरली। विल गो आई विल गो वन स्टेप फर्दर, दैट उसको गुस्सा आता है तो सिर्फ माँ बाप पे ही आता है। हम्म भाई फ्रेंड्स के साथ एकदम परफेक्ट है। हम्म। इनफैक्ट चेयरफुल है, हंसता रहता है। अच्छा मेरे को बताइए, थोड़ा सा पाठ पूजा या थोड़ा, अभी तो जो छोटा है, बट डज ही नो ही डजंट डू एनी पाठ पूजा? नो नो नो। 23 अप्रैल। मैम एनीथिंग पर्टिकुलर यू वुड लाइक टू टेल, बिकॉज ये चीज मैच नहीं कर पा रही है कि इस समय बीमार था ये। 13 अगस्त 23 से लेके 29 दिसंबर 23, ये टाइम अच्छा ठीक होना चाहिए था, बट ये आप कह रहे हो कि थोड़ा सा खराब था। तो मैं ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। He was born at night, Aarti. यस। हम्म। अच्छा आपने बोला वेकेंट लैंड नहीं है, ठीक है, अबैंडन लैंड भी नहीं है, कुछ अबैंडन लैंड या नहीं 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 नहीं। ओके।
अच्छा, मून, जुपिटर, मार्स, सन। See, Aarti, when was he was in 10th, right? जब उसको when he was hospitalized? Yeah, Was it टेंथ में तो 24 or 23? yeah, 24 or 23? 23. अच्छा ये बताओ, अप्रैल 24 से जून 24 कैसा पीरियड था इसके लिए, हेल्थ के लिए? हम्म, अप्रैल 24 से जून 24। नहीं ठीक था। वो डेंगू छोड़ के और कोई मतलब ओकेजनली वो उसको इस टाइम, यूजुअली उसको ना मॉनसून के टाइम में ना ये बुखार, हाई फीवर, ये सर्दी खांसी ये सब होता है। मॉनसून, ये आप जो जून का टाइम वो बोल ठीक रहे हो है, ना, ये मॉनसून टाइम है। वो बहुत नॉर्मल सी बात है। बस यहाँ तो ये क्योंकि आप मेरे को जून का टाइम बोल रहे हो, तो हम्म, आई कैन ओनली रिलेट विद दिस कि हाँ उसको हाई फीवर का आता है, बुखार हुआ था मॉनसून में, जून जुलाई ऐसा। हम्म। बट नो मेजर, नो मेजर, दैट्स फाइन। नो मेजर हेल्थ, नथिंग, ओके, टच नथिंग। ओके, ठीक है। मैं मेरे को एक ये बताइए कि सितंबर 20 से जनवरी 21, हम्म, इस समय तो वैसे कोविड चल रहा था, जी। बट कहीं बाहर तो नहीं जाना हुआ इनका, बच्चे का? आर्यमन का बाहर था ना, वो दिल्ली गया था मेरी मम्मी के पास, काफी दिल्ली का? टाइम रहा था वहाँ। हाँ, सितंबर 20 से जनवरी 21 के भी आसपास। यस। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, काफी टाइम के लिए वहीं था। कब गया था मैं, कितने देर के लिए गया था? अ, था कम से कम 2-3 महीने, 2 महीने के लिए तो गया ही था। कौन सा महीना? दिस इज अराउंड दिवाली टाइम से लेके 2020। दिसंबर तक। या 2020, चलो ठीक है। बट यू सेइंग ही इज नॉट क्रिएटिव, ही इज नॉट, मतलब सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग कुछ? नो 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 नो, ही इज नॉट क्रिएटिव, नो, एंड नॉट एट ऑल। हाउ इज हिज गट हेल्थ? फाइन, इट्स फाइन। या, in fact I think his gut is made of brass. It is fine now, okay. So Jupiter, and he's good with relatives also. Okay, भैया so जी, I अगर want अभी to, आप जो क्रिएटिव जो कह रहे हो ना, हाँ, इसको कुकिंग का बड़ा शौक है, तो ही लाइक्स टू कुक, सो इफ दैट काउंट्स एज क्रिएटिविटी। that also extra curricular activity I would say अच्छी है उसमें। हाँ मतलब he काफी used to शौक है be उसे। very fond of playing football and physical active health, gymming, weightlifting, वो सब बंद हो गया है अभी। और आपने अभी what was your last question, sorry, आपने कुछ पूछा था मेरे से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नहीं ये तो नहीं, इसके पहले before Ani said about the food, uh, हाँ यू आर आस्किंग कि रिलेटिव्स के साथ कैसा है। हम्म, तो उसको बिफोर दिस 15-16 एज जब हिट करा, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, बहुत उसको मेरे जैसे मेरे भाई और मेरे बुआ वगैरह उनके साथ बहुत प्रेम था। मतलब वॉज वेरी लविंग एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, और बहुत ही वॉज क्लोज टू देम। बट जैसे ये एज है ना 15-16 का जो आया ना पिछले 2 साल में, ही हैज बिकम वेरी डिस्टेंट, ही हैज बिकम वेरी क्लोज्ड। बिल्कुल भी नहीं बात करता किसी से। ओके, ठीक है। किसी से नहीं, मतलब मेरे से भी कम बात करता है। और नानी और बाकी इसके कजिन्स तो या तो बहुत छोटे या तो बड़े हैं। एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मैं अभी उसमें आ रहा हूँ। श्योर श्योर। मैम, थोड़ा सा सेंसिटिव है लड़का। हाँ सेंसिटिव है। किस सेंस में बोल रहे हो मैम सेंसिटिव है? अ, मतलब ही वैसे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, हाँ, मतलब लेकिन शांत रहता है, थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब बात कम हाँ करने वाला। हाँ, यू कैन मेक आउट जैसे उसको अच्छा, व्हेन ही इज एक और चीज, हर्टिंग। इफ आई वुड गिव यू टू ऑप्शंस, secretive, not very open with others, or
Okay, okay. Secretive, not open with others. Secretive. ठीक है. Now everything is matching, but this creativity वाला part ना मेरे को थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा वो हो रहा है. हाँ, but see, he is not creative. He hasn't. वो जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे art और ये और वो and singing music. See, he is very very fond of music. सारा दिन वो music ही सुनता रहता है. But does he sing and all? No, he is. See, to be fair, to be honest, he is very shy. He is also very. He has stage fright. वो public speaking से बहुत डरता है. तो maybe we have not discovered it yet. But वो या तो अब कुकिंग इज I'll tell है you. तो यू कैन I'll tell you काउंट why इट. why I'm saying, because या I'll tell you a few things about his chart, which is very 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 beautiful. The first thing is, can you see Jupiter in this sign, ninth sign? This is very good in this house. Again, Venus is in the fifth house, exalted. Sun is exalted in sixth house. So these things are very good. But again, जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा वो रिश्तेदारों से कम है, इट्स फाइन. बट अगेन क्रिएटिविटी वाली चीज मेरे को थोड़ी सी ना मेरे को कम डाइजेस्ट हो रही है. ही शुड बी क्रिएटिव. ओके ओके. सर किस वजह से कह रहे हो आप? वीनस की वजह से? Venus in the fifth house, yes. ओके. इट माइट बी कि थोड़ी देर में आई अभी. इट माइट बी नॉट लाइक दिस कि अभी होना चाहिए, बिकॉज इज वेरी यंग, 16 साल का है अभी. चलिए लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन कि इसका करियर कैसा रहेगा. तो यहाँ पे मरकरी में सैटर्न है, मरकरी में सैटर्न रनिंग, मरकरी सैटर्न D10. अभी मेरे को थोड़ा सा ट्रैक बताओगे कि इसने एग्जाम्स वगैरह कब देने हैं, कैसा है इसका, थोड़ा सा मेरे को बताओगे. सर इसके एग्जाम्स तो खैर स्कूल के तो चलते ही रहेंगे अगले 1 साल तक. और इसके बोर्ड एग्जाम्स है अगले फरवरी में. लेकिन उसका जो वो जो लॉ की जो एंट्रेंस एग्जाम है, टेस्ट है, दैट इज इन दिसंबर दिस ईयर. तो कुछ 7-7.5 महीने हैं. ठीक है. दैट इज द मेन वन. मतलब इफ यू आस्क अस, 12th भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला जो एग्जाम है उसने क्रैक करना है. मैम देखो, 2-3 चीजें हैं चार्ट में तो ना, थोड़ा सा मेरे को अच्छा दिख रहा है. ओके. मरकरी में सैटर्न है. सैटर्न इनके अच्छे प्लैनेट हैं इन द 10th हाउस, इवन दो इट इज रेट्रोग्रेड, बीइंग रेट्रोग्रेड इन मघा नक्षत्र. सो थर्ड लॉर्ड गोज इन 10th हाउस. अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कभी आपने नोटिस करा कि इसको थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना, थोड़ा सा मतलब डिस्कस करना अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं, मैंने इसका एक छोटा थोड़ा यंग कजन है. मतलब वही मैं बोल रही हूँ, कुछ साल पहले तक तो वो काफी वो था. मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना, थोड़ा बच्चों को करने सपोर्ट वाला. करना, थोड़ा हेल्प करना, थोड़ा सिखाना, बिग ब्रदर टाइप. बट वो पिछले 2 साल में वैनिश हो गया एकदम. बट ऑल्सो दैट ही इज अ सिंगल चाइल्ड, सो वो इंटरेक्शन मैं देख नहीं सकूंगी. मतलब एक्सेप्ट वो कजन भी है, बट जो छोटा कजन है वो भी दिल्ली में रहता है, अब तो वो भी बड़ा हो गया है. नहीं तो एज अ सिंगल चाइल्ड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो एग्रीड. सी दैट साइड ऑफ हिम. ठीक है मैम. अच्छा इसमें ये वाले पीरियड में 22 से 24, जो भी 2 साल से, क्या इसमें कोई वेट इंक्रीज आया कुछ बेटे में? यस आया. यस आया. वेट इंक्रीज हुआ बहुत, फिर घट भी गया बहुत. व्हेन आई टोल्ड यू कि ही वाज वेरी कॉन्शियस और उसने अपना वेट पे बहुत ध्यान दिया है, डाइट पे ध्यान दिया, ठीक है. हेल्थ कॉन्शियस. बट समवेयर he has lost it since December this year. You know, earlier before, a little before December. उसके बाद से ही इज गॉन कम्प्लीटली डाउनहिल. वो ही बहुत ही ऑब्सेस्ड है खाने से, और सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है, खाता रहता है. ही हैज रिड्यूस्ड हिज फिजिकल एक्टिविटी. बहुत शौकीन था जिम का, फुटबॉल का, सब मतलब काफी कम हो गया. बंद नहीं हुआ है बट बहुत बहुत कम हो गया. ही हैज बिकम वेरी लेजी, वेरी वेरी लेजी.
क्योंकि उसका दिमाग आधे टाइम तो वो गेमिंग में होता है, वो कंप्यूटर गेमिंग में इज जो क्या डिस्ट्रैक्टेड। है। मैम बेटे को कोडिंग का शौक तो नहीं है कुछ थोड़ा बहुत कुछ क्या शौक है? कोडिंग वगैरह का कुछ? आ, था कोडिंग का शौक, उसने कोर्स भी करा था, बट ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट आल्सो। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। क्रिएटिविटी ना कोडिंग में भी आती है। द फिफ्थ हाउस समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग समथिंग। ही दिस इज, वाज इनटू एडिटिंग। हाँ। इनफैक्ट वो लॉकडाउन का वो फर्स्ट ईयर तो वो सारा देर टाइम वो कोर्स में एडिटिंग ही सीख रहा था, एवरीथिंग फ्रॉम म्यूजिक टू वीडियोस एंड एवरीथिंग। हाँ, यहाँ पे बट आया ना वो बात, भी, यहाँ पे आया बात। हाँ तो वो भी इट इज, मतलब नाउ इट्स डिसअपियर्ड। दिस इज रिसर्च, इट्स फाइन, बट वो आया ना, मैं वही वही ओके, ढूंढ रहा हाँ, हूँ। मैं वही ठीक है, ढूंढ रहा हाँ, हूँ। गॉट इट, हाँ, अंडरस्टूड। इट्स नॉट, मैम देखो क्या होता है ना, क्रिएटिविटी डजंट मीन कि लड़का सिंग कर रहा है, पेंट कर रहा है, इट इज ऑल्सो दैट थिंग, बट editing or doing something out of the box, which is ओके, unconventional. This is also creative. यस, या, ओके, गॉट इट, I am looking अंडरस्टूड, for that thing. अंडरस्टूड। हाँ, ही वाज डूइंग दैट इन द होल ऑफ लॉकडाउन पीरियड 2020 से बिगिनिंग ऑफ 21। Okay, ही वाज now, क्वाइट इंटरेस्टेड, हाँ। now I'll tell you, ma'am. Now I'm in line with this chart. Now ओके, I'll tell you each and everything. मैम हाँ, 2027 अभी चल रहा है इसका, 2024 से 27 मरकरी में सैटर्न। सो इस पीरियड में पर्टिकुलरली ही हैज टू गो थ्रू हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। इसमें ये इनको 2.5 साल और अभी चले, जून अभी चल रहा है, हाँ, मोटा मोटा 2.25 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, Now I'll tell you, ma'am, Saturn in the 10th house, it makes that the person always have to prove himself in his professional life. This will remain in his life forever. ओके, Something good, but ओके, always he has to put some extra effort and extra struggle for that. Or I would say extra hard work. Now, अच्छा, मैम एक और बड़ी वियर्ड सी चीज पूछूंगा मैं आपसे। मैम हाँ, क्या इसने कभी आपको ऐसे बात करी कि मेरे को सांप दिखा, या सांप का कुछ बात करी कुछ, नहीं। या लिजर्ड फोबिया टाइप कुछ है इसको? क्या फोबिया? छिपकली से डर या कॉकरोच नहीं, से डर? हाँ, 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 डरता है। फोबिया का पता नहीं, फोबिया इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट डरता जरूर है। ओके, यस, ठीक, यस। गॉट इट। तो मैम ये ना इसको, नाउ योर क्वेश्चन इज दिसंबर 2024, दिसंबर हम्म, 2025 में एग्जाम होगा या नहीं होगा, मोटा मोटा। हम्म, हम्म, वर्गों में जमीन, जमीन, वर्गों में जमीन। मरकरी में सैटर्न में वीनस एंड एप्पल, वर्गों में जमीन, पे वीनस में सैटर्न। मैम ही हैज टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और आई वुड से हार्ड वर्क। हम्म। थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा। अच्छा, इसकी फादर का कैसे बनती है, पापा के साथ इसके? उस, हाउ इज हिज कनेक्शन विद हिज फादर? इट्स स्ट्रेन्ड, इट्स अ अच्छा। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, या मतलब कभी कभी बहुत ही अच्छी बनती है, हम्म। कभी कभी दे आर लाइक फ्रेंड्स, लेकिन मैक्सिमम टाइम इट्स अ वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। और झगड़ा होता, सॉरी, ऐसा कभी आपको फील हुआ कि थोड़ा सा पूजा पूजा पाठ के थोड़ा सा ये दूर है? अच्छा, इनके फादर जो हैं, मतलब इनके एंसेस्टर्स, वो कैसे थे स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, पाठ पूजा में, कुछ है आपको आइडिया? हाँ, बहुत स्पिरिचुअल है वो तो। बहुत थे। हाँ, ये थोड़ा सा ऑपोजिट है, राइट? हाँ, ठीक है। तो मैम नाउ प्लीज 2-3 चीजें नोट करेंगे। मैम एक तो ना आपको शनिदेव की बेटे के लिए पूजा करनी है, एटलीस्ट टिल 2027 फॉर हिज करियर। ओके। पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू शनि महाराज मंदिर एवरी सैटरडे? अब मैं कर लूंगी कुछ मैनेज। और मैम एक सरस्वती माँ की पूजा। नाउ सरस्वती, व्हाई आई एम सेइंग दिस,
बिकॉज 25 सितंबर से लेके 7 मार्च 26 तक when he is about to appear in the exam. So he would be running Mercury में, Saturn में, Venus, and correspondingly he would be running Virgo में Gemini. Now Virgo में Gemini is a positive thing. Virgo is 6th sign and Gemini is 10th sign from this. So this is showing something positive. Whenever there is a connection of 4-10 का तो ये अच्छा होता है। और मार्स जो है इनके अमत्यकार का 10th हाउस में आके बैठे हैं, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर दिस थिंग। बट जो हमने ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मरकरी में सैटर्न है, सैटर्न इनके रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम या हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शंस या डिले थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा बेटे को फॉर हिज एग्जाम्स टू क्लियर। ओके मैम बेटे का करियर इन लाइन आएगा 2034 के बाद, एंड फॉर द नेक्स्ट 20 years द करियर विल बी ऑन द अप फ्रंट फॉर द नेक्स्ट 26 years, 34 से 60। बट ओके टिल 34 थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसके मन में चलता रहेगा ये चीज। तो विकास जी, ये आपने व्हेन वी इनिशियली टोल्ड यू कि इसने लॉ चूज किया, यू आस्क्ड व्हाई डिड ही चूज लॉ, इज देयर एनी अल्टरनेटिव? एंड आल्सो यू आर सेइंग इसके दिमाग में कुछ और चलते रहेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत चलेंगे इनके मन में, वो दिलाने हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स? यस, ओके। उसका रीजन है सर, और आई वुड वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड 27 से 34 केतु महादशा में, केतु महाराज के पीरियड। अभी देखिए व्हाई आई एम सेइंग दिस, केतु महाराज इन 10th हाउस इन द 5th साइन, it's a very very strong indication that he should appear in the government exam or he should get the government job. Now I'll tell you one thing more. उसमें one thing I'll just tell you, he has a phobia for mathematics whatsoever it is, so what? तो हाँ, so what, ठीक है, it's okay। नहीं तो ये गवर्नमेंट एग्जाम है, IAS, are you referring to you know IAS and all of these? I'm talking about UPSC as well as judiciary। Yeah, judiciary is fine। देखो Saturn in the 10th house, it's very good। केतु उसके साथ तो कहीं ना कहीं जज का कॉम्बिनेशन which is fine, but so long as it is related to law, that वो उसमें वो कर लेगा, that's what even I think। अभी I'll tell you one thing, I'll show you one chart। क्या आपको इनके चार्ट में नेहरू, पंडित नेहरू का चार्ट है ये, पंडित नेहरू के चार्ट में और आर्यमन के चार्ट में एक चीज दिख रही है? इनके चार्ट को देखना और पंडित नेहरू के चार्ट को देखना एक बार। ये पंडित नेहरू का चार्ट है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। जुपिटर का एस्पेक्ट जा रहा है सैटर्न पे। अनिल जी, कैन यू अप्रिशिएट दिस? ninth aspect। नाइन्थ एस्पेक्ट। और नेहरू जी के चार्ट में जुपिटर का एस्पेक्ट जा रहा है सैटर्न पे, कौन सा वाला? वो भी 9th ही है। सैटर्न इज इन द 5th house, 5th साइन। सैटर्न इज इन द राइट 5th साइन। सो लॉ में तो आएगा ही बच्चा, लॉ में, so law is right for him, right? लॉ इज राइट। मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि जब मैम ने बोला ना कि गुस्सा नहीं आता और क्रिएटिव नहीं है, देन आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव। तो दैट वाज यू नो, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले ना आई हैव टू बी वेरी श्योर कि ये चार्ट ठीक है कि नहीं है। फिर अभी जब मैंने ये देखा कि जुपिटर का पीरियड, जुपिटर के पीरियड में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हुई, तो वो मैं अभी आई विल सी व्हाई इट हैपेंड। अच्छा मैम, जब इसका बर्थ हुआ था तो ही वाज ओके हेल्थ वाइज? हाँ, no, he had got jaundice at birth. He has got jaundice. Yeah, he had jaundice at birth. Okay. मैम जब 4 साल का था, ये वाला पीरियड, मार्च 12 से जून 12,
हम्म। कुछ याद है आपको, कुछ बीमारी, कुछ थोड़ा बहुत उसको परेशानी? ट्रिगर फिंगर का मैंने बोला ना, उसकी सर्जरी करानी पड़ी थी। कभी? उसके इट्स अराउंड दिस टाइम ओनली, दिस एज। ओके। उसके थंब का थंब में एक मसल फंस गया था, तो उसका थंब सीधा नहीं होता था, तो दैट मसल हैड टू बी कट फॉर हिम टू स्ट्रेटन हिज थंब। मैम मेरे को ये बता सकते हो, ये तो खैर महीने का पीरियड ही है, मार्च 19 से अप्रैल 19, थोड़ा जुकाम बुखार हुआ होगा उस समय पे? हाँ जी। मार्च 19 से अप्रैल 19 थोड़ा जुकाम बुखार हुआ होगा बेटे को? 19। हाँ जी। एनी हाउ बहुत छोटा पीरियड है तो नॉट। या बट आई बड़ा 2019 का चलिए मैम, मुझे बड़ा याद चलिए। भी नहीं रहेगा। चलिए मैम, बेटे को ना प्लीज बोलिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, और ये दो तीन चीजें ना आपको फोकस करनी है। ओके। चार्ट इनका थोड़ा सा बाद में जाके सही होगा, मतलब लाइफ में सेकंड आई से 25-27 ईयर्स के बाद में। हम्म। जी, केतु। चैलेंज अभी नियर टर्म वही है कि कैसा क्या किया जाए सो दैट ही स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड हाँ। हम्म। and he stops the underperformance that currently हम्म। that he's not scoring well in his tests. His teachers are also calling him out. So वो उसको अभी थोड़ा सा उसको encourage और motivate करना है. And where Aarti is struggling is that he is disinterested in everything. कुछ मतलब कुछ बोलो तो he is not been very responsive to whichever way they are trying to explain things. ओके। देखो अपन इसको धीरे करके बात करेंगे। पहले अभी रिस्पॉन्सिबल बात को सेकंड प्रायोरिटी पे देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ना, मैम एक काम करेंगे, इफ पॉसिबल कैन यू शिफ्ट हिज स्टडी प्लेस इन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन इन द होम और इन हिज बेडरूम? Yeah, I have already done that. Ani, remember you had asked me to shift his desk? तुम लोग एक बार आए थे तो तुमने बोला था it should not be towards the window. We should turn it towards which I have already done. Is he sitting उस हिसाब से? नहीं विकास जी, Yeah. आपका कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? देखो, फेसिंग आइडियली फेसिंग वेयर फेसिंग वेयर facing west. फेसिंग Ideally, it should be west of southwest, but if not possible, then west is fine. ओ फेसिंग Actually, it is actually facing southwest only. No, southwest is different, ma'am. अच्छा Southwest, ठीक है, आप बता दीजिए, हम लोग वो west, हाँ हाँ, we'll west, check चेक it. west. करके विल कम बैक टू यू. हाँ, हाँ, we'll check it. Okay. वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है. Why I am saying this? Okay. Because Hmm. I'll explain, ma'am. From in Vastu, west direction is governed by Saturn, and he has chosen the profession of Saturn. And Saturn is 10th house. So I want to, align everything. Second thing, ma'am, please ask him or please be strict to not connect with mobile phone at max जितना हो सके. I'll explain the Hmm. reason, ma'am. राहु in the 4th house ये थोड़ा सा बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करता है. बट द फॉर्चुनेट थिंग इज अभी राहु की दशा वगैरह नहीं आ रही है, बट स्टिल राहु इन द 4th हाउस, हिज एज इज वेरी वल्नरेबल. तो अभी क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये बेटा थोड़ा सा मोबाइल से आप थोड़ा सा इसको कम मतलब डिस्ट्रैक्ट होना कर सकते हैं? पॉसिबल है सर? मैं ट्राई कर सकती हूँ सर, मैं कर सकती हूँ, नहीं कुछ मैम, तो कर लूंगी. हाँ, यू हैव टू डू इट अ बिट बिकॉज Yeah. सी हिज चार्ट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स चार्ट. It might feel very not obvious at this point of time, but I can say this thing. क्योंकि अभी मैम केतु का पीरियड भी आएगा 7, मतलब 2 years down the line for 7 years. Then Venus will start. Venus पीरियड से इनकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, दैट इज मोर देन, मतलब जब भी 26-27 साल का होगा उसके बाद. तो अभी इसको आप 2-3 चीजें जरूर करवाइए. सरस्वती माता का पाठ डेली करवाइए. शनि महाराज का मंदिर एटलीस्ट ऑन सैटरडेज. नॉन वेज तो नहीं खाता बेटा? खाता है. खाता है. हम्म. For gym or for taste or for health? Taste, gym, both. He's fond of it. It's part of it. Yeah. Ma'am, is it in a culture or it just he's fond of it? No, we eat. It's in our culture. We eat.
वी आर नॉट वेजिटेरियन. ओके, अच्छा यू फ्रॉम कोलकाता राइट? हाँ, but we are. My husband is a Sardar. We are Punjabis, ओके. so we eat. नॉर्मली ना मैं जब ये चीजें आती है ना कि हाँ जी. प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुस्सा, अब सॉरी, स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ कुछ देर के लिए हमें नॉनवेज थोड़ा सा कम करना चाहिए. हाँ, तो Possible? कम है नहीं. ओके ओके, I'll just tell you. ऐसा नहीं कि हमने रोज खाना है. हम्म. नॉनवेज हमारे लिए होता है वीकेंड, once a week or twice a week. ऐसा नहीं कि हमने रोज ही खाना है. वो इट्स अ स्पेशल ओकेजन काइंड ऑफ थिंग. बट एग्स हम रोज खाते हैं. मतलब कुछ देर के लिए नॉनवेज कम कर सकते हो? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ नॉनवेज. आप कम करने का मतलब मैं वंस अ वीक कर दूं इंस्टेड ऑफ ट्वाइस अ वीक, या बंद ही कर दूं? कुछ देर, मैम देखो, अगर बंद कर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ देर के लिए. ओके ओके. आप ये क्यों कह रहे हो विकास जी? कैन यू यस. एक्सप्लेन? हाँ, डेफिनेटली. जुपिटर इन द सेकंड हाउस, इट्स अ वेरी पायस प्लैनेट. Jupiter in the second house of eating, second house is house of money, second Also house is house house of of money. speech. Yes, yes, yes. And Jupiter is a Also pious and house of spiritual planet, most spiritual planet in this chart. और right. उसको हम नॉनवेज से थोड़ा सा पोल्यूट कर रहे हैं. So that is why I'm saying this thing. So वैसे आरती's family is a vegetarian family. उसके या घर में, her family is vegetarian family. But her husband's side, they are non-vegetarian. Hence ये खाता है. See, I मतलब would साइड recommend no. में वेजिटेरियन ऑल्सो इज ओनली द हिज मदर इज अ वेजिटेरियन, बट बाकी पूरी फैमिली खाती है. तो थोड़ा सा या मैम इसको और बच्चे को बोलो अवॉइड करें. दो तीन चीजों की मैं रिस्ट्रिक्शन बोलूंगा मैम. एटलीस्ट टिल दिसंबर, जब तक एग्जाम है, नॉनवेज थोड़ा कम करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें. ओके ये जरूरी है, क्योंकि मैम ये देखो ओके. ना अभी इनका, मैम आपको ना थोड़ा सा ना अभी ऑब्जर्व करना है कि जुलाई से सितंबर के बीच में थोड़ा सा बेटा डिसओरिएंट होगा. क्या कर लिया, क्या क्यों कर लिया, ये क्या डिसीजन ले लिया. यू विल फील दिस थिंग, ही विल से टू यू दीज वर्ड्स. इन सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा बेटा पढ़ाई में और आगे आएगा. गेटिंग माय पॉइंट मैम? हाँ जी. तो उस समय वी हैव टू टैप दैट एनर्जी. सो अगर मैं उस एनर्जी को टैप करता हूँ, लाइक वी आई स्टार्ट डूइंग द रेमेडीज बिफोर हैंड, वही जैसे हाँ दो तीन चीजें बताई मैंने. एक मैम, आई वुड सजेस्ट वन थिंग मोर फॉर हिज स्टडीज. आस्क हिम टू लर्न द थिंग्स बाय राइटिंग एज मच एज पॉसिबल. पॉसिबल है मैम? हाँ जी. ओके. उसमें मैं आपको और चीज ऐड कराऊंगा. इफ पॉसिबल प्लीज आस्क हिम टू राइट ऑन वाइट पेपर विद ग्रीन पेन. ओके और इसके साथ साथ इफ पॉसिबल ट्राई टू यूज 3 पेन्स टुगेदर, लाइक ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया. ओके. Now, this seems to be a bit absurd. I'll explain why I'm saying this thing. Anirudh ji, hello. जी जी जी. अनियोदय. हाँ Why I'm saying this? Writing is Ketu, 10th house. 3 pens is Ketu again. Green pen is Mercury. White sheet is Saturn. So Okay. I'm trying to tap that energies from this point of time. तो ये मैं चीजें तीन चार चीजें बोलूंगा आपको. But from career point of view, 26 years onwards, he will be very on a uphill side. अभी मैम 2 साल थोड़ा सा हार्डवर्क है अभी इसके चार्ट में. Because you one more query related. If for say some reason he does not score well this year, या कोई भी इसमें नहीं होता, because he is not, he for some reason he fails to motivate himself and put in the enough efforts. तो एक साल ड्रॉप करके should he again drop in the sense he will take admission अभी जहां पर भी होगा, हाँ, he should try once again. should he reattempt the exam? Yes, absolutely yes. Okay. So that will be December 26 and 27 के से आप समझ लीजिए मार्च अप्रैल तक सारे टेस्ट होंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ 27.
if it goes to the second attempt. यस, देखो ये पीरियड है ना, 24 अक्टूबर 24 से लेके जून 27 तक। मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि 22 से 24 इसका परफॉर्मेंस ठीक था, 24 से 27, 24 से अभी तक इसका परफॉर्मेंस डाउन ऐसा चल रहा है क्या कुछ? हाँ, नहीं एक्चुअली हाँ 24 में परफॉर्मेंस ठीक था। स्कूल परफॉर्मेंस इज ओके, स्कूल में ठीक है। इनफैक्ट लास्ट उसके जो मार्क्स में पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी, इज इम्प्रूव, टीचर खुश थी। या मैम देखो, सिंपल बात है, बेटे को थोड़ा सा हार्ड वर्क के लिए भी बोलिए, पढ़ाई के लिए और अच्छे से बोलिए, या बिकॉज सैटर्न है, हार्ड वर्क कराना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क करवाएंगे। और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम नॉनवेज। ठीक है, करके देखिए मैम, 2-4 महीने यू विल ठीक है, फील। ये मैं आई कैन ट्राई टू डू इट। या आगे बढ़ते हैं। हाँ Because अगर वो नॉनवेज नहीं पॉसिबल, because he is quite fond, and if he does not listen to Aarti, then what is the alternative? Because आपने बोला, उसने सुना भी, but to get it executed is another thing. And then for that, everybody in the household has to be on board, including her husband. So if that does not happen, then that is again another thing, but मैंने आपको ना रीजन बताया है बहुत स्ट्रांगली कि सेकंड हाउस is house of money also, and Jupiter gives strong money over there. it's an excellent placement. Wow. It's excellent placement. So we should not try to pollute it at all. ये चीज है, थोड़ा सा हमें स्ट्रांगली कर दे तो बढ़िया, कर दे तो बढ़िया। मैम इनके फादर ड्रिंकिंग वगैरह का है का कुछ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग का? हाँ, मतलब ही स्टॉप्ड हिज स्मोकिंग एंड हिज ड्रिंकिंग इज बहुत ही कम। बहुत ही ही इज नॉट फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग, इट इज अ वेरी ओकेजनल। ओकेजनल, ठीक है मैम, वही है। चार्ट ठीक है, टाइम थोड़ा सा भी आगे थोड़ा सा रफ पैच है अभी, बट डाउन द लाइन इट्स गुड थिंग। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग। सी सर, जुपिटर यहाँ पे वर्गोत्तम है, वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड एंड वर्गोत्तम है, तो अच्छा चार्ट है। तो अभी इनको बेटे को थोड़ा सा बोलिए पढ़ाई और अच्छे से करें। मैं मेरे को कुछ बताओगे, ये 13 से 16 पीरियड कैसा था, जब ये 5 से 8 साल का था, उसमें तो क्या ही पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट लॉ इज फाइन, and we have to put something in his mind that you have to prepare for judicial services as well. वो करवाना है मैंने। ओके और आई वुड सजेस्ट somehow धीरे धीरे वो भी करवाते जाओ, लाइक जनरल स्टडीज का थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाओ। ओके Like if we implant his mind to start preparing for judicial services from the very very beginning, so when the time comes he will be prepared somehow. So ये अच्छा वो तो बाद में होगा ना, आई मीन अभी तो 21 years down the line, मतलब 5 जब भी इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तभी हाँ, नहीं वो तो सर वो तभी बाद में करा। अभी फिलहाल द इमीडिएट थिंग इज व्हाट टू डू इन दिस, बट हाउ टू क्वालिफाई फॉर अ गुड कॉलेज, दैट्स अ इमीडिएट नियर टर्म KRA। तीन चीजें फॉलो करी सर, थिंग्स विल बी पॉजिटिव। सरस्वती माता, शनि महाराज, नो नॉनवेज एंड वेस्ट, और जो बताया वाइट पेन, वाइट पेपर, 3 पेन्स, पर्टिकुलरली ग्रीन पेन। ठीक है मैम, शनि महाराज की पूरा आप थोड़ा सा डेली अगर हो सके, शनि एंड सरस्वती फॉर हिम। ओके पॉसिबल है? और मतलब सर मुझे ना ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पल कहाँ है। सरस्वती का तो टेम्पल हमारे घर के पास है, लेकिन शनि महाराज का टेम्पल घर पे करिए ना, घर पे करिए, शनि चालीसा डेली करिए। हाँ वो कर सकती हूँ। डेली करिए, और अगर बेटा कर सकता है साथ में तो वो कोई बहुत अच्छी बात है। आई वुड टेल यू मैम, स्टार्ट फ्रॉम 21 days, 21 दिन के लिए करना है, और उसमें कोई नॉनवेज नहीं खाना है।
तो ये शनि चालीसा आप जो कह रहे हो वो आरती को करना है? देखो आइडियली तो बच्चे को बेटे को करना चाहिए, हाँ। बट अभी ही इज वेरी 16 इयर्स, वेरी वल्नरेबल, छोड़ो कौन या करे। या मतलब हाँ, नहीं वो आरती के लिए भी ठीक है, मैं उसका भी मकर लग्न ही है, तो इट्स आई मीन हाँ, तो इट हेल्प हर आल्सो। यस। To start with 21 days, and I would suggest continuous doing at least till 2027 for him. You will feel the results, man. Positive results. सो दिस ये रोज करना होगा Yes, शनि ma'am. का चालीसा? Yes, ma'am. ओके। और अगर सैटरडे को मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैम। सो मैं सैटरडे तो जा सकती हूँ मंदिर, हाँ वो नो मंदिर प्रॉब्लम। सर, लेकिन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शनि मंदिर इज थोड़ा मुंबई में, या इवन आई एम नॉट अवेयर। हाँ ठीक है, या तो मतलब घर पे तो करिए, घर पे तो टेस्ट करिए ना, वीडियो। या घर पे कर सकती हूँ, स्टार्ट करें घर थोड़ा पे कर सा। सकती हूँ। बट या विल फाइंड आउट ऐसा, इवन इफ इट्स नॉट सो, मतलब इट डजंट हैव टू बी डेडिकेटेड शनि मंदिर, कोई नवग्रह वाला रहा है तो वहां पे भी हाँ हाँ, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शनि देखो, भगवान तो एवरीवेयर है ना। द थिंग इज दैट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट सम seriousness in RM's mind. हाँ एक्चुअली ही That शुड is बी important. That is important. तो इंस्टेड ऑफ दिस एनी अदर मंदिर, उनके घर के दे लिव नियर सिद्धिविनायक, तो मंदिर तो सर सेम ही है ना, मंदिर में तो कुछ ज्यादा वो नहीं है कि मंदिर इज ऑलवेज थिंग। तो कोई भी मंदिर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आई टेक इट टू दैट। बट थिंग इज दैट ऐसा नहीं है ना कि हम नो झाड़ के मंदिर जा रहे हैं, नॉनवेज खा के मंदिर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना है। ये मैं चीजें बोल रहा हूँ। बट मैम अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, वन थिंग वेरी क्लियर, डूइंग ऑल दीज थिंग्स विल नॉट गारंटी कि इसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रगल है। हार्ड वर्क, पढ़ाई इस पे बहुत ज्यादा आई वुड सजेस्ट करनी होगी इसको। ओके। हाँ, these things will catalyst his success. करेक्ट। हम्म। एक बार ना मेरे को वो बता देना, वो हाँ चलो नहीं, वो वेस्ट की डायरेक्शन में थोड़ा सा फोकस करना, वेस्ट की डायरेक्शन। जी, वो मैं आई चेक टुमारो इटसेल्फ, और दैट आई बताइए। डू। 1 सेकंड। So my main was obviously this career, and ये आपने बता दिया, फील्ड बता दिया। यू नो आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो उसका जो लैक ऑफ मोटिवेशन, ये जो लैक ऑफ एनर्जी और फोकस है ना, इसके लिए कुछ कर सकते हैं? आर देयर एनी? हम्म। तो ये किस ऑल्सो थोड़ा, विकास जी, ऑल्सो द कंट्रोल करना पड़ेगा, यू नो, थोड़ा गेमिंग, और आई थिंक मैम मैंने वो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मैम। राहु इन द फोर्थ हाउस, इट डज क्रिएट ह्यूज डिस्ट्रैक्शंस। तो I'll suggest you one thing, ma'am, which I normally does for the parents of these age teenagers, कि आप मोबाइल अपने घर में लाओ ही मत। और ये इसके में बहुत ज्यादा बिल्डिंग ईयर्स हैं, तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल्स, विच सीम्स इम्पॉसिबल, बट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बेटे के लिए। और यू कैन ना थोड़ा सा हमें और रिस्ट्रिक्टेड कर देना है बेटे के लिए, पॉसिबल है मैम। आई अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि 2/34 से लेके 54 या 60 तक आर्यमन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करियर, बट वो करियर आज से बिल्ड करना पड़ेगा हमें। इट इज नॉट लाइक कि चार्ट में आ गया तो करना ही है, ये होगा, मिलेगा मिलेगा, बहुत इजीली मिलेगा। इसे हमें, वी हैव टू गाइड हिम लाइक एनीथिंग। करेक्ट। व्हाट माय टीचर यूज्ड टू से, अगर मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो तोड़ दो उसको। गेमिंग का, मोबाइल्स का, इंस्टाग्राम का एंड ऑल दोस थिंग्स, प्लीज मेक श्योर इट डज नॉट इन ऑब्स्ट्रक्ट स्टडीज। वो कर रहा है इसको। एक छोटा सा रेमेडी होता है, वो काम करता है। जैसे अगर बच्चा बात नहीं सुने ना, तो आई टेल यू वन थिंग, मैम एक ना सुराही आती है, डू अंडरस्टैंड? ओके। या सुराही होती है जिसकी बहुत पतली सी नेक होती है, नीचे से यस। बड़ा सा वो होता है, उसका पेट होता है। या तो उसमें पानी डाल के बेटे को पिलाना।
So he would start listening to your advices. मटका चलेगा? मिट्टी का Matka मटका? Matka is not Surahi, ma'am. I know Surahi it's not is something which Surahi. has Yeah. long neck. Yeah. That would be very effective. I'll show you the pictures, ma'am. नहीं, I know Surahi. I know. विकास जी, मैं भी पीना I- शुरू करूं? मैं भी अपने पेरेंट्स की बात सुन लूंगा फिर। आपको क्या जरूरत है सर? इसको सुराही बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स Okay. बहुत परेशान है मुझसे। अच्छा, ये है ऐसा? Hmm. अरे Yeah, मैंने देखा है मैंने। नीचे से नेक इसकी पतली है और वो Yeah, it's a long. Yes, correct. So it's a wonderful remedy as well. मिट्टी के लिए आना मैम, Hmm. और उसे पीना शुरू करें। अभी गर्मी भी वैसे आ गई है तो घड़े की जगह उसको यूज कर लो तो अच्छा रहेगा। आगे बताइए प्लीज मैम। ठीक है। तो ये जो आरती ने अभी पूछा आपको विकास जी, दैट in terms of where she is struggling in terms of his general disinterest and lack of motivation, one ये चार्ट में से कहाँ पे दिख रहा है वो? सैटर्न अच्छा, Saturn is retrograde. Saturn is dullness, no okay. spark. So ये थोड़ा सा चलेगा, बट ये ना सर, मोटा मोटा आई वुड से 12th मार्च है, आज ही है, तो इट्स लास्ट डे। सो अभी कल से ना थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखना शुरू होगा। 12th मार्च से 29 मार्च थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी बेटे में। फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक थोड़ा सा होगा कि क्या कर लिया, कहाँ फंस गए। एंड देन सितंबर से मार्च तक यू विल बी एक्सट्रीमली फोकस्ड टुवर्ड्स द करियर, टुवर्ड्स द एग्जाम। सो ये इसका चार्ट बता रहे हैं। पैरेलली हमें क्या करना है, हमें जो 5-7 रेमेडीज है वो करनी है, वो करते रहना है। और एक मैम, इफ यू यूज द वॉलेट, प्लीज पुट 1 सिल्वर कॉइन इन इस वॉलेट विदाउट एनी इंस्क्रिप्शन। ओके, वैसे वॉलेट वो कैरी करता नहीं है। बैग में डाल दी। तो जब हाँ। जब कैरी करना शुरू करे, जब कैरी करना शुरू हाँ, ओके, ठीक है। करे। मोबाइल कौन सा दिया बेटे को आपने? आईफोन कौन सा वाला? 13। कितने का? आई थिंक 50,000 का है तो या मैम 45,000, ऐसे कुछ। ये इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? वेरी बैड। मैम प्लीज टेक इट। आप उसको प्लीज रिस्ट्रिक्ट करिए मैम, अदरवाइज इनका बेटे का कैरियर बहुत अच्छा है। ये सैटर्न के समय में तो थोड़ा सा इसको मेहनत करवाइए। ओके। हेलो, आई हर्ड यू। या एनी अदर क्वेश्चन सर, मैम? एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग? नहीं, आई थिंक ये जो आपने बताया, आई थिंक दीज थिंग्स एंड वो डायरेक्शन का कर लेते हैं। वही मेरा एक और था, आई जस्ट वांटेड टू नो वो व्हाट हैपन इन केतु महादशा इसका, तो बट दैट यू ऑलरेडी कवर्ड। आई थिंक ये नियर टर्म यही है सर। बेसिकली वी वांट टू काइंड ऑफ एनकरेज हिम एंड काइंड ऑफ ड्राइव थोड़ा टुवर्ड्स द हार्ड वर्क पार्ट एंड मैंने ऐसे करियर के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, बट जो इसका टाइम आएगा ना उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, बी वेरी स्ट्रिक्ट। वो स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा, दैट आई एग्री। इसका रीजन बताऊं मैं क्यों? बिकॉज सैटर्न इज द लेबर, है ना। लेबर तब तक काम नहीं करती जब तक डंडा ना पड़े। वी ऑल नो दैट। तो ये मैं सिंपल सी बात क्लियरली उसमें बोल रहा हूँ कि वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट मैन विद हिम। Yeah, that part I think I think the time has come that we'll have to kind of he will have to pull up his socks, and for that even we'll have to pull up our socks from our end in terms of getting things done. Yes. वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि as you said right, I mean आगे the career looks, because ये combination उसके placements ना काफी अच्छे, Jupiter, Venus, Correct. even Saturn, Ketu in 10th is good. He puts in effort, it'll give him brilliant results going ahead. Yes. But अभी See, I am confident.
मतलब यू विल सी द But डिफरेंस from here to there कैसे जाना है, basically struggle ये है at the moment. Because to for all of this to materialize, he needs to first get into a good school, and for that he needs to first, get a good score in these entrance tests. और अभी वो क्या, वो बोर्ड का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है. When these are all meaningless exams है वो. हमारे टाइम पे होता था उसका importance, अभी तो it's just useless exam. It has to be very very, hence a competitive exam में how he will fare इसका है. तो यही है एक दूसरा. आई थिंक आरती का भी अपना उसका रीडिंग कराना है, बट दैट विल डू एट अ लेटर दिस थिंग. एंड आई थिंक वन ऑफ आरती's फ्रेंड, शी आल्सो वांट्स टू डू अ कंसल्टेशन. या उनको भी कराना है, तो आप बताओ. मैं यार आस्क हर टू कनेक्ट विद यू as you're comfortable. Ma'am, I'll share the recording to you or either Anirudh sir. एक बार हाँ, go through जाने से अगर आपको कोई सवाल पूछना हो और या कुछ समझना है तो यू कैन डायरेक्टली एक बार फिर बैठ जाएंगे, कॉल कर लेंगे मेरे को. जी हाँ जी. जी. बट आई एम कंफर्टेबल विद दिस चार्ट आफ्टर या आइदर इन द वीनस महादशा. ट्रस्ट मी, वीनस महादशा बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि ये उसके बाद सूर्य की दशा भी आएगी, तो 34 से 60 साल 26 साल बढ़िया होगा इसका. बट वो उससे पहले थोड़ा सा रफ पैच है इसके साइड. नेक्स्ट 9 years के बाद, 9 साल बाद. 9 साल के बाद, यस. Which is fine. I think that he'll be in the peak of his मतलब उसका 5 साल में तो I think next 5 years will go in this thing, and next couple of initial years का work experience भी हो जाएगा. And after that, it'll be excellent. I think that will also be the time, even personal life में he'll begin to settle down and all of that. Yes. Correct. Love marriage की चार्ट में हाँ, वो तो है. Venus in fifth. 7th और 5th हाउस. Yeah. हेल्थ ठीक रहेगा. हेल्थ, बढ़िया. हाउ इज हिज हेल्थ? हेल्थ बढ़िया, बट थोड़ा सा ट्रैवलिंग थोड़ा ध्यान से करे. बाइक चलाता है मैं बेटा? हाँ. मतलब ठीक चलाते हैं? नहीं, he knows how to have he has a bike, he knows how to ride a bike. नहीं, bike in the sense वो cycle. Scooty. No, he has a scooty ना. Oh, he has a scooty? I didn't know that. Yeah, his goalie left behind his scooty, but चलाता नहीं है. मैक्सिमम मेरे को अगर जिम ड्रॉप करना हो या कुछ, बट चलाते नहीं है, पड़ा है बस ऐसे ही. थोड़ा सा मैम देखो, मार्स इन 8th हाउस ना, थोड़ा सा ये आई वुड से बी वेरी केयरफुल ऑन रोड. Yeah, two-wheelers avoidable है, to be honest. हाँ, 2 व्हीलर जितना हो सके बढ़ते, मोटा सिंपल सी बात. And to put it bluntly, it can lead to accidents. ये मेरे भी चार्ट में है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी कभी 2-wheeler अलाउ नहीं किया था. सेम विद मी. ओके. आपका भी मार्च 8th में? मार्च 8 में है. हाँ, तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अवॉइडेबल है. 2-wheeler इज अवॉइडेबल. यस. 4 is fine. He can drive a car. 2-wheeler is and I'll tell you very very clearly, he is having a lot of money in his life. Rahu in 4th house, Venus 5th house, Jupiter 2nd house, excellent combinations. But ma'am, for that I would strongly recommend 110% no non-veg. Then see the difference. Even if it is in the family culture, even if it is every day in a life, please avoid it. Very clearly I'm saying. अरे आप जितने बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हो. See sir, I understand. After Jupiter 2nd house का, you have paid me. I have to be very strict in this thing. No, absolutely. Even if it does not look good to you, I have to say. नहीं. No. You please, you have to. I have one more question, a little on his relationship with us, with his parents. It's as I told you. फादर के साथ कम बनेगी. सिंपल. आपके साथ फिर भी ठीक है, फादर का थोड़ी सी कम बनेगी. Will it improve over the years कि हमेशा ही ऐसा रहेगा? मैम मोर और लेस फादर का थोड़ा सा कम बनेगी. उसका रीजन है मैम, 9th हाउस पाप कर्त्री में है, 9th लॉर्ड नीच के हैं. सैटर्न के तो ऊपर, मास नीचे, पाप कर्त्री में आ गए 9th हाउस, और 9th लॉर्ड इन द सेकंड इन दिस थिंग नीच, और दोनों में नीच के हैं, तो फादर के साथ थोड़ा सा बेटे का इनका कम है. नहीं नीच नहीं समझा मैं. क्यों? अच्छा, स्कॉर्पियो में इसके लिए मून इज इन स्कॉर्पियो ना.
हाँ, ओके 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 ओके, नाइन्थ लॉर्ड इज मून। हाँ समझ गया समझ गया। शादी के बाद थोड़ा सा इसका रिलेशन ठीक होगा फादर, बट आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे है इनके फादर के साथ। और मेरे साथ? आपका ठीक है, नॉट वेरी बैड, बट आप सदैव बेटे के लिए स्ट्रेस में रहेंगे बिकॉज ऑफ राहुल। वो तो यू आर राइट, आई थिंक वो तो क्यों क्यों क्यों? उसका तो राहु मून इन राहु फोर्थ फर्स्ट तो, हाउस, राहु फोर्थ हाउस। नहीं बट मून इज ऑल्सो इन फर्स्ट ना, तो आई मीन मदर विल हैव अ आउटसाइड इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हिज लाइफ। तो वो तो एंड ही अडोर्स हिज मदर, उस आई मीन ही मैंने बोला मदर हमेशा परेशान रहेंगी इनके लिए। आई विल ऑलवेज वरी फॉर हिम, ही बट सेइंग। वो तो कोई भी माँ करेगी ना, वो तो दैट इज नॉर्मल। नॉट एग्जैक्टली एवरी मदर, कहीं की फादर ज्यादा करते हैं यहाँ पे। हाँ, आपका इन्फ्लुएंस बेटे पे हमेशा रहेगा, और I would बहुत say आपकी गाइडेंस हमेशा रहेगी बेटे के ऊपर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। You go to the recordings and Yeah. if you know to connect once again, it's totally okay. Done. I'll do that. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, Thank sir. you. Good night. Thank you. Vikas ji, thank you very much for your Good time. night. Thank you. Bye bye.